बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। yesterday मैंने आपको आपके साथ कुछ डिस्कशन की थी एंड आई हैड टोल्ड यू कि ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट I will inshallah solve this example as a tutorial class, online tutorial class. So ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए मुझे भी ब्रीथ इन करने के लिए और आपको भी आसानी से समझ आ जाए. Okay, so up till now we have discussed some configurations for a Brayton cycle, ideal Brayton cycle, or a gas turbine cycle with intercooler and reheater and regenerator. आई एम सॉरी अगर आपको आवाज़ आ रही है मेरे बैकग्राउंड पर तो काफ़ी शोर होगा. उसके लिए माजरत, बट आई होप कि एवरीथिंग इज़ अंडरस्टैंडेबल. Okay, so now we will solve that example. Yesterday I had told you that using um, an intercooler and a reheater along with multi-stage compression and multi-stage expansion is normally only suitable when we utilize a regenerator as well for better thermal efficiency. Okay, so now we will solve an example to see how that thing is, in numerical form. How can we validate this thing? Okay. Okay, so an ideal gas turbine cycle with two stages of compression and two stages of expansion has an overall pressure ratio of 8. Okay, so I will explain this overall pressure ratio to you. Air enters each stage of compressor at 300 Kelvin. So every stage at point 1, at point 3, it enters at 300 Kelvin, and each stage of turbine at 1300 Kelvin. Okay, so we are required to determine the back work ratio and the thermal efficiency of this cycle, assuming number one, the first scenario. This is actually an analysis question. This is a C4 level question. Okay, so number one, there is no regenerator involved in this whole configuration, and number two, an ideal regenerator with 100% effectiveness. Okay, so what is this term? You already know, but I will, inshallah, when I'll get to this point, I'll explain it. So first of all, let's draw the TS diagram for this, because this TS diagram you'll have to draw it yourself if given such problem in your exams or assignments or quizzes. Okay, so let's draw that TS diagram. So we don't require a dome in this case. You already know the reason is because the whole working fluid does not change any phase during this whole process. It is a gas. And again, here uh, we are assuming standard air assumption. So you already know what that means. Okay, so we, in this cycle, we will replace this combustion chamber. Standard air assumption means we will replace this combustion chamber with a Q in. Okay, so Q in, and also we will replace this exhaust air which is going outside. Normally it does this. Okay, we have an open cycle, but we will consider it as a closed cycle from point 10 to 1. Again, the heat, this air is in a closed cycle and it is coming back into the compressor, and we have here we have a Q out, some mechanism through which heat is leaving the gas. Heat is being extracted from the gas. Okay, so let's draw this
TS diagram. So okay, so first let's start from 3. Okay, so we know one thing. The minimum temperature is 300 Kelvin. Okay, and the maximum temperature is 1300 Kelvin. मैं ये लैपटॉप की जो पैड है उसको यूज़ कर रहा हूँ, सो डेफिनेटली राइटिंग विल नॉट बी दैट गुड, बट लेट्स गो विद द फ्लो, जितना हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज करते हैं. ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम 1.1, दिस इज पॉइंट वन. ओके, सो पॉइंट वन से टू इट इज compression, isentropic compression definitely. Then from 2 to 3 it is intercooling but at the same pressure, and we know the pressure trend is like this. ओके, सो लाइक दिस, ये ऐसे ही नीचे आएगा. सो इंटरकूलिंग मीन्स कि वो दोबारा पॉइंट थ्री, बिकॉज वी नो हमें गिवन है कि ईच स्टेज ऑफ कंप्रेसर इनलेट इज एट 300 केल्विन. सो अगेन दिस मीन्स कि जहाँ तक पॉइंट थ्री तक जहाँ इंटरकूलिंग होगी दोबारा हमारी. Okay, so here this is the direction, here this is the direction. Again, then from 3 to 4, again compression, isentropic compression, the scenario is same. So this means T4 will also be equal to T2. Okay, so this T4 will be equal to T2. ये हमने find out करना, we don't know this. Neither this T2, neither this T4. Okay, after this what is happening? और अच्छा, फॉर द टाइम बीइंग आई एम नॉट कंसिडरिंग दिस रीजनरेटर. सो पहले मुझे ज़रा इसको अरेज करने दें. सो इनिशियली वी डोंट हैव अ रीजनरेटर राइट नाउ. ओके, सो ऑल of the heat is supplied by this combustion chamber, and we have heated the gas from point 4 up till point 6. ओके, बिकॉज अभी फिलहाल हम रीजनरेटर को यूज नहीं कर रहे, सो देर इज नो पॉइंट फाइव हेयर. ओके, सो this means from here up till point 6 we will get this is point 6 turbine inlet, which already has been given that it is every inlet stage inlet is 300 kelvin, 1300 kelvin. Okay, so this is point 6. Okay, then from point 6 to 7 we have isentropic expansion, and it is a cooling process. तो वो ऐसे हो जाएगा. Okay, okay, let me erase this pressure as well, because ये problem create करेगा समझने में. Okay, then this is point 7. 7 के बाद again reheating up till point 8, which is again your 1300 Kelvin, because it is given that every inlet of turbine, this is a turbine inlet, right? Point 8 is second turbine inlet. So it is also at 1300 Kelvin. It is given in the question, और normally हम इन्हीं assumptions के साथ चलते हैं unless told otherwise. Okay. And then from 8 to 9 again expansion at this same point. Okay, and then from 9 to, again we are considering a closed cycle, so from 9 to point 1. Okay, रीजनरेटर अभी नहीं है, सो पॉइंट वन, 9 से 1 तक हम इसको क्लोज साइकिल, एंड डेफिनेटली वहाँ से कुछ हीट रिमूव होगी, तभी हम एक इनिशियल कंडीशन पर आएंगे ना पॉइंट वन पे. सो वो हीट रिमूवल प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक. ओके, सो दिस इज योर साइकिल फॉर दिस केस. ओके, सो क्वेश्चन का जो पार्ट वन है उसमें हम इस साइकिल को यूज करेंगे. ओके, अब यहाँ पर एक और चीज़ देख लें. वो मैं आपको सेकंड कलर के साथ समझा देता हूँ.
Okay, so if let's say इसी point पर the regenerator, we have put the regenerator is with 100% effectiveness, right? So this means k point 4 will be heated, ये जो point 5 है, okay, again let's rub it, let's remove other things ताकि आपको समझा सकूं. Okay, so let's see if there is a regenerator and with 100% effectiveness. So it means that point 4, the air coming from point 4 after passing through the regenerator will be heated up till point 9. Complete heat transfer होगा. Okay, maximum possible heat transfer 100% effectiveness के साथ हो जाएगा. Okay, so we will get this point 5 will actually be here at this point when we will add the regenerator. Okay, similarly from point 9 up till 10 कूलिंग जो होगी, तो वो ये जो point 10 है, it will be cooled down till point 2 here, और in other words point 4 ना, point 4 आपका यही बन रहा है. ठीक है, so 9 पॉइंट, सॉरी 4 पॉइंट जो है वो 9 तक हीट अप हो जाएगा, बिकॉज ये 9 यहाँ पर भी 9 है, सिमिलरली ये 4 है, तो 4 ने 9 की कंडीशन इख्तियार कर लेनी है कंप्लीट. ठीक है, और वो 5 बन जाएगा 4, एंड 9 जो है उसने 4 की कंडीशन इख्तियार करके 10 पॉइंट बन जाना है, एंड दैट विल बी एट दिस पॉइंट. ओके, कंप्लीट हीट ट्रांसफर हुआ है, कंप्लीट मैक्सिमम पॉसिबल हीट ट्रांसफर हमने अचीव कर लिया, बिकॉज द इफेक्टिवनेस इज 100%. ओके, सो इफेक्टिवनेस 100% का व्हाट इज मेंट बाय इफेक्टिवनेस ऑफ 100%? दिस मीन्स, इससे मैं आपको यहाँ से शो करवा देता हूँ. Effectiveness of 100% means that Q actual heat transfer is equal to the maximum possible heat transfer. Okay, so जैसे कल हम explain कर रहे थे, this point will be here. Okay, and this point will reach this point. So ये चीज़ हमने कल कर ली थी, otherwise go through your heat transfer lectures, और फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आई एम डेफिनेटली हेयर फॉर यू गाइस. ओके, सो वी वर एट दिस लाइट. ओके, सो आई होप दिस ऑल ऑफ दिस इज क्लियर टू यू. अगर आपको नहीं समझ आई तो आप दोबारा इसको रिवर्स करके देखें. ठीक है, फिर भी समझ नहीं आई तो फिर मुझे आपने आकर पॉइंट एग्जैक्ट बताना होगा, जिस वक्त हम कोई ट्यूटोरियल सेशन हुआ कोई क्लास में, कि इस पॉइंट से ऑनवर्ड्स मुझे समझ नहीं आ रही, या ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आ रहा. Okay, then I will definitely try to clear it, clear the point. Okay, so इसी को यूज करते हुए, और अब मैं इसको रब कर देता हूँ. सो ये दिस इज योर एक्चुअल टीएस डायग्राम. ओके, सो दिस इज फ्रॉम द बुक, और वो मैंने आपको ड्रॉ करके भी उसका सारा प्रोसीजर बता दिया. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. If you remember in the start of lecture, I had told you कि standard air assumption apply हो रही है. Okay, so what is meant by that standard air assumption? It means, बल्कि वो चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है, that combustion is replaced by Q in. Air is an ideal gas, behaving as an ideal gas throughout the system. Okay, throughout the cycle, and there is a Q out here, and it is a closed cycle. Now, if you remember, I had also told you another assumption, that was uh, cold air assumption. Okay, so let's go back to our start of this chapter. So, just for the sake of revision.
दैट ये आपका आ गया, this is standard error assumption. Okay, there is also another assumption which is called cold air standard assumptions, that is referred to when we take specific heat Cp as a constant. Okay, constant specific heat. Normally values are determined at 25 degrees centigrade. So for air as an ideal gas, this Cp is 1.005 1.005 kilojoule per Kelvin, kilojoule per kg Kelvin. Okay, but in this problem, इसको ज़रा प्लीज समझ लें. Okay, प्लीज बेयर विद मी. मैं इसलिए ताकि आपको ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए. सो इन दिस प्रॉब्लम बुक में इसको एक तरीके से सॉल्व किया गया, और सेकंड मेथड भी मैं आपको बता दूंगा. सो एक मेथड तो है हमारे पास, मेथड वन इज टू गो विद द प्रेशर रेशोस जो कि हमें गिवन है. बल्कि ओवरऑल प्रेशर रेशो भी हमने फाइंड आउट करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ. ओवरऑल प्रेशर रेशो हमें पता है, और हमने एक्चुअल प्रेशर रेशोस फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो एनीवेज, pressure ratio will be given to us, or we will be easily able to find it, P2 over P1 फॉर एग्जाम्पल. और इसके साथ सिमिलरली वही मेथडोलॉजी करके T2 फाइंड आउट कर सकते हैं हम इज इक्वल टू T1 और गैमा माइनस वन ओवर गैमा. ओके, एक तो ये मेथड है, इसी को यूज करते हुए हम T2 फाइंड आउट करें. ठीक है. सो T4 भी सेम वही हो जाएगा जो T2 है. T3 हमें पता है, T1 पता है. सिमिलरली T6 हमें पता है, T8 पता है. सो इफ वी यूज वन एंड वी नो द प्रेशर रेशो, वी कैन फाइंड आउट T7 एंड देन अल्टीमेटली T9. ओके, एक तो ये पॉइंट हो गया. एंड सिमिलरली जब रीजनरेटर आएगा तो फिर T7 T9 के इक्वल T5 होगा, एंड T4 T2 के इक्वल ही T10 होगा. ठीक है, एक तो ये अप्रोच है. देर इज ऑल्सो अनदर अप्रोच. इसमें अब हमारी क्या कंसिडरेशन होती है? इसमें हमारी सबसे बड़ी कंसिडरेशन ये है कि सी पी इज कांस्टेंट. दिस इज योर कोल्ड standard air standard air assumption. Okay, constant. And also because Cp is constant, this means this gamma, या इस चैप्टर में वी आर फॉलोइंग k, ये इस k होता है, it is also constant. Okay, so this is approach number one. Approach number two ये है कि we go with standard air assumption जो ये वाली है, but we do not follow the cold air assumption. ठीक है. And we consider Cp and ultimately K also as a function of temperature, which in reality is the case. ओके, ये दोनों चीज़ें टेम्परेचर का फंक्शन है. दिस मीन्स टेम्परेचर विल वेरी. वेन एवर द टेम्परेचर वेरीज, दिस सी पी एंड के विल वेरी. सो ये जो सेकंड मेथडोलॉजी है ये बुक ने फॉलो की हुई है. ठीक है. एंड जो बुक एग्जाम्पल सॉल्व हुई हुई है वो इस तरीके से हुई है. अब उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट आई विल शो यू, एंड वी विल यूज सम प्रॉपर्टी टेबल्स फॉर दिस. और आई थिंक आप लोगों ने शायद थर्मो टू में या कहीं पर ये काम किया भी हो. मे बी देर इज़ अ चांस कि आपने ये किया हो. ठीक है. हाउएवर लेट्स सी. अच्छा, उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि द प्रेशर रेशो विच इज़ 8 given to us is the overall pressure ratio, which is this one. So the minimum pressure and the maximum pressure in this scenario, इसकी रेशो हमें given है. Okay, and this is 8. All right, so I hope this is clear. अब ये तो given है, लेकिन हम we are interested in this means P4 our P1 is given to us, or P9 sorry P6 our P9 is given. बट हम तो इंटरेस्टेड हैं P2 और P1 फाइंड करने में.
और P4 और P3 फाइंड करना है, राइट? हमें तो ये हम तो इंटरेस्टेड हैं इस प्रेशर रेशो को फाइंड आउट करने में। सो फॉर दिस आई डोंट नो अगर आपने जो थर्मोडायनामिक्स में ये काम किया है या नहीं, बट जस्ट इसको मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो इफ वी हैव अ P low, this is P low, lowest pressure. Okay, and then we have a P high, highest pressure. Okay, we have a high pressure here. Okay, okay, so then there is also a P intermediate, which means that intermediate pressure, which will be this one. ओके, सो अब अगर इसको फाइंड आउट करना है हमने और आइडियली फाइंड आउट करना है कि व्हाट विल बी दिस आइडियल प्रेशर रेशो इन बिटवीन दिस आइडियल इंटरमीडिएट प्रेशर, व्हाट विल बी दिस इंटरमीडिएट प्रेशर जिस पर हमारी जो परफॉर्मेंस है ऑफ सिस्टम वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, सो उसके लिए मैंने आपको कल जो वैसे बताया था, it is given as follows. So P H our P I is equal to P I our P low. ओके, सो ये दोनों रेशो सेम होने चाहिए। यही बात अभी हमने की है, यही बात इसमें भी लिखी हुई है। ठीक है, and it this these ratios are actually equal to the square root of pH, the highest pressure, over the lowest pressure PL. ओके, सो ये ही यहाँ पर और ये इस केस में दिस रेशियो इज गिवन टू अस, दिस इज द ओवरऑल प्रेशर रेशियो, ओवरऑल प्रेशर रेशियो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। All right, so let's solve this example. So first of all, according to our discussion, P2 over P1 should be equal to P4 over P3, right? P2 over P1, P4 over P3, and this should be equal to under root square root of the overall pressure ratio, right? And that is 2.83. Square root of this is 2.83. Okay, okay. Similarly, same overall pressure ratio वहाँ पर भी apply होगी, and we can find out this कि ये P6 over P7, this P6 over P7 is equal to P8 over P9, and that is equal to P6 over P9, which is again under under root P6 over P9, which is under root 8, that is 2.83. Okay, so I hope at least at this point you are clear. उसके बाद हम क्या करेंगे? Then T1 is equal to T3, डेफिनेटली जी हमें गिवन है। ठीक है, और सिमिलरली अभी सारी बात आपको बताई थी। अभी ये फर्स्ट जो हम एनालिसिस कर रहे हैं अपना, दैट इज विदाउट द रीजनरेटर। ओके, सो विदाउट रीजनरेटर, इसीलिए हम यहाँ पर पॉइंट 10 की और पॉइंट 5 की बात नहीं कर रहे। ओके, सो इफ T1 is equal to T3 and in ideal situation H1 is also equal to H3, okay, because T same T means same TP, sorry CP, and H is equal to CPT. Okay, so H is equal to CPT. So this means if this T is same, this CP is same. So ultimately H को भी same होना पड़ेगा. Similarly, T6 is equal to T8. This is also given to us. Inlets की बात कर रहे हैं. सो दिस मीन्स H6 विल बी इक्वल टू H8। यहाँ पर हम जब स्टैंडर्ड एयर असम्पशन की बात नहीं करते तो फिर वी गो फॉर इंथाल्पीज। ओके, स्टैंडर्ड कोल्ड एयर असम्पशन, बिकॉज मैंने आपको कह दिया था कि इसमें हम उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं। CP इज वेरिंग, सो दिस मीन्स व्हेन CP विल वेरी, सो हम इंस्टेड ऑफ यूजिंग सिंपल टीज और CPT हम H को यूज़ करते हैं। ओके, बिकॉज H इजीली टेबल से हमें मिल जाएगा अभी। Okay, similarly at exits again the same scenario is happening. T2 is equal to T4, this means H2 is equal to H4. Similarly, T7 is equal to T9, hence
T H7 is equal to H9. Okay, so now how will we find these things? कैसे find out करेंगे? Let's see. Okay, so in the absence of regeneration, the back work ratio and thermal efficiency are determined by using table A17. ये आपकी बुक में एंड में गिवन है. मे बी आपने किसी और थर्मो 2 में ब्रेटन साइकिल को सॉल्व करते हुए इसको यूज भी किया हो, डेफिनेटली किया होगा. Okay, so this is your ideal gas properties of air table. Okay, so in that, sorry. Okay, so अब इसकी अप्रोच क्या होगी? एट 300 केल्विन जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, पॉइंट 1 से हमने शुरू किया. H is given to us as 300.19 kilojoule per kg, and again then we have this PR. This is called relative pressure. Okay, इसका बड़ा importance हमारी. Okay, so this relative pressure is actually a quantity dimensionless quantity है ये. Okay, so we don't have time to explain what this relative pressure is, but you should know that between any 2 points of temperature and pressure, so the pressure ratio P2 over P1 is equal to the relative pressure ratio PR2 over PR1. Okay, so this ratio is always equal. It is a tabular property. इसको हम टेबल से relative pressure को find out करते हैं. Okay, ये हमारे बड़े काम आएगा और ये हम यूज करेंगे to calculate the next temperatures. Okay, so let's see how. ये property हमारे पास आ गई and relative pressure is also there. Okay, so let me just remove all of these. Okay, okay, so now next is we know PR2. Now अभी जो मैंने आपको बताया था कि P2 over P1 is equal to PR2 over PR1. So P2 over P1 हमें पता है which is 2.83. ऐसे ही. सो अब PR2 over PR1 को इसके इक्वल करके PR1 भी हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसको हम यहाँ पर ले आएंगे एंड वी विल फाइंड आउट दिस PR2 के पॉइंट 2 पर व्हाट इज द रिलेटिव प्रेशर. ओके, सो दैट कम्स आउट टू बी 3.92. ओके, अब हम जाएंगे टेबल में और देखेंगे कि किस पॉइंट पर रिलेटिव प्रेशर 3.92 है. सो इफ वी गो थ्रू द टेबल, टेबल काफ़ी बड़ा है, ये मैंने जस्ट उसमें से क्रॉप की हुई हैं चीज़ें, तो यू विल सी कि आपको एक पी आर गिवन है विच इज़ 3.806 एंड वन इज 4.15. सो नाउ वी विल इंटरपोलेट. अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो टेम्परेचर और वो इंथाल्पी जिस पर ये आपका जो रिलेटिव प्रेशर है वो 3.92 है. ठीक है, सो दिस मीन्स कि अगर हम इंटरपोलेशन करें विच इज़ अ टॉपिक यू हैव ऑलरेडी कवर्ड इन मैनी कोर्सेज, सो आई होप कि आपको इंटरपोलेशन क्लियर होगी. सो उसको यूज़ करते हुए, उस प्रोसीजर को यूज़ करते हुए, इंटरपोलेशन के प्रोसीजर को, वी फाइंड आउट दैट द टेम्परेचर हेयर इज डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान ही होगा. सो दिस इज 403.3 Kelvin and the enthalpy is again between these two 4.4.31 404.31 Kelvin. ओके, सिमिलरली यही काम हम करेंगे अब T6 के साथ भी. सो अगेन हम T2 और H2 पर पहुंच गए. सेम काम हम T6 के साथ करेंगे विच इज़ नोन 1300 Kelvin. इसको यूज़ करते हुए हम इंथाल्पी फाइंड आउट कर लेंगे एंड द प्रेशर रेशियो एट दिस पॉइंट. अगेन ये अब दिस इज PR6. ओके, अब इस PR6 को यूज़ करते हुए हम T7 तक पहुंचेंगे एंड H7 तक. सो PR6 अगेन वो रेशियोज यूज़ की एंड वी फाउंड दैट द प्रेशर रेशियो एट पॉइंट 7 इज 17. ओके, सो this 117 is between 114 and 123. so again interpolate करेंगे और वो temperature और वो enthalpy find out कर लेंगे which is this one and this one. Okay, so I hope up till this point you are clear. ठीक है, so now we have all the data to solve our problem. Okay, so मैं इसमें अभी एक दो मिनट का ब्रेक मुझे दें
और मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ इसको। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट। ओके, जहाँ तक हमने कर लिया, इसको अगेन अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप दोबारा एक बार देखें, फिर देखें। रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फायदा है सबसे बड़ा। ओके, अब हमने एक विदाउट रीजनरेटर सॉल्व करना है एंड विद रीजनरेटर। सो पार्ट वन इज विदाउट रीजनरेटर। सो without regenerator. So we need to find out the back work ratio and the overall efficiency, thermal efficiency of the system. ओके, सो सबसे पहले तो हमें वर्क नेट चाहिए और वर्क ऑफ टरबाइन एंड वर्क ऑफ कंप्रेसर्स फाइंड आउट करना है। ओके, so work of compressor which is in will be equal to 2 times work of compressor in 1 and 2। जो दोनों वर्क ऑफ कंप्रेसर भी इस केस में कंप्रेसर, एक कंप्रेसर का वर्क आप फाइंड आउट कर लें, दैट विल बी इक्वल टू द सेकंड कंप्रेसर एंड सेम टरबाइन के लिए भी ये ही है। ठीक है, ये ही सिनेरियो है, दोनों का सेम होगा। ओके, सो वी कैन सिंपली ऐड बिकॉज वर्क इज एच। वर्क आप कैसे फाइंड आउट करेंगे इस केस में? ठीक है, वैसे हम क्या करते हैं, सीपी, अगर हम कोल्ड एयर अजम्पशन करते, सीपी T2 minus T1, but now we are considering that this CP is varying। ठीक है, ये CP पॉइंट T2 और 1 पे कॉमन नहीं है, डिफरेंट है, तो उस केस में CPs दोनों की हो जाएंगी और देन वी विल चूज H2 minus H1। ओके, and as H2 is equal to H4 and H1 is equal to H3, so this means कि H2 minus H1 will be equal to H4 minus H3। so simply हम ये काम कर सकते हैं कि एक कंप्रेसर का वर्क फाइंड आउट करके और उसे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास टोटल वर्क ऑफ कंप्रेसर आ जाएगा। सेम गोज विद द टरबाइन एज वेल। ओके, अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही तो आप दोनों वर्क ऑफ कंप्रेसर से लेकर निकाल लें। ठीक है, एंड यू कैन अगेन यू विल सी कि यही आंसर है। सो इस केस में विदाउट रीजनरेटर द वर्क ऑफ कंप्रेसर H2 माइनस H1 पुट किया, जो कि हम पीछे फाइंड आउट कर चुके थे, एंड वी हैव गॉट दिस वैल्यू। वर्क ऑफ कंप्रेसर इन रिक्वायर्ड इज 208.24 किलोजॉल पर केजी। सिमिलरली वर्क ऑफ टरबाइन आउट, ये हमने वैल्यूज पुट की एंड वी हैव गॉट दिस वैल्यू। सो अब नेटवर्क अगर हमने फाइंड आउट करना है, जो कि हमें एफिशिएंसी के लिए ज़रूरत पड़ेगा, सो इट कम्स आउट टू बी वर्क ऑफ टरबाइन आउट माइनस वर्क ऑफ टरबाइन इन। नेटवर्क मींस के एक्चुअल में कितना वर्क कंप्रेसर में भेजने के बाद पीछे बच रहा है टरबाइन में से, जो कि आप यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके, सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस नेटवर्क मीनिंग। ओके, एंड क्यू इन, व्हाट विल बी दिस क्यू इन? दिस क्यू इन विल बी इक्वल टू, अब देखें आप यहाँ पर दो जगह क्यू इन कर रहे हो इस केस में। द फर्स्ट वन इज दिस क्यू, अभी हम रीजनरेटर चूज नहीं कर रहे, सो द फर्स्ट वन इज दिस क्यू फ्रॉम 4 to 6, और फिर रीहीटिंग करने के लिए 7 से 8 भी तो आप क्यू रीहीट भी कर रहे हो ना। सो दैट इज वाई दिस क्यू इन विल एक्चुअली बी क्यू प्राइमरी, जो कि आपने H6 माइनस H4 करने के लिए किया। ठीक है, H4 को H6 तक पहुंचाने के लिए, सो वो आ गया आपकी, देन प्लस H8 माइनस H7। सो ये आ गया आपके पास दिस वैल्यू। सो योर एक्चुअल क्यू इन दिस केस विल बी 1334 किलोजॉल पर केजी। Okay, so no, to find out the efficiency and back work ratio, just simply use these values। efficiency, back work ratio हमारे पास क्या होती है? work of compressor over work of turbine। okay, so work of compressor in over work of turbine out। बैक वर्क रेशियो है, दिस इज नॉट वर्क रेशियो। ठीक है, वर्क रेशियो आपकी क्या होती है? नेट वर्क ओवर वर्क ऑफ टरबाइन। okay, so this is 0.304, so actually 30.4% वर्क आपका बैक जा रहा है इनटू योर सिस्टम। ठीक है, टू रन द कंप्रेसर।
सिमिलरली थर्मल एफिशिएंसी कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? W dot W net over Qn. So net work over Qn, how much Q we have added into the system, and that comes out to be 0.35 or 35.8%. Okay, so this was without the regenerator. Now when we will use the regenerator, so this means regenerator यूज करने से पहले तो ये देखेंगे अफेक्ट क्या पड़ेगा. अफेक्ट हमारा ये पड़ेगा कि रीजनरेटर यूज करने से 4 से 5 तक ऑलरेडी बिफोर एंटरिंग इनटू द कंबशन चेंबर आपकी एयर हीट अप हो चुकी होगी. ठीक है. सो नाउ क्यू इन विल बी फ्रॉम H5 टू H6. अब आपकी H6 माइनस H5 क्यू प्राइमरी बन जाएगी. ठीक है. जबकि क्यू रीहीट आपकी वही रहेगी, Q7 से Q8, H7 से H8. ओके. However, regenerator यूज करने से हमारे वर्क ऑफ कंप्रेसर इन पर और वर्क ऑफ टरबाइन आउट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. ओके. देख लें आप, बेशक सॉल्व करके इसको देख लें. वर्क ऑफ कंप्रेसर इन विल रिमेन द सेम एंड वर्क ऑफ टरबाइन आउट विल रिमेन द सेम. ओनली थिंग विच चेंजेस इज दिस क्यू इन. ठीक है. दिस रिड्यूसेस. ओके. सो दिस मीन्स कि बैक वर्क रेशो या वर्क रेशो दोनों केसेस में सेम ही रहेगी. ठीक है. वर्क आउटपुट आपको सेम ही मिलेगा. ठीक है. बट क्यू इन रिड्यूस होने की वजह से आपकी थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. ओके. सो लेट्स सी, अब इसको सॉल्व करते हैं. ये बात यहाँ लिखी हुई है. सो नाउ क्यू प्राइमरी इज जस्ट H6 minus H5. पहले क्या थी? Q primary H6 minus H4. This was a bigger value. Now this is reduced. Okay. So now again this is actually 2 times of H8 minus H7. वही है. ठीक है. जो चीज़ जहाँ अप्लाई हो रही थी, अब रिजनरेटर के केस में वी आर ऑल्सो अप्लाइंग इट हेयर. But again you can put these value and solve it to avoid any confusion. So now the Qn is only this term 685. पहले ये क्या थी? 1334. Okay, so reduced, actually तकरीबन हाफ हो चुकी है, more or less than half. ठीक है. So now when we'll use this, so we will get the thermal efficiency, ठीक है, and that is around 69.6%. So you can see it is actually has been, the thermal efficiency is doubled just by using the regenerator. So here we can justify the use of regenerator and this overall term. So definitely as we require less Q in, so this means is Q in की require करने के लिए we will be burning some fuel here, right? वो fuel कम burn होगा. There is a chance कि ये combustion chamber भी छोटा हो जाए, इसका size हम reduce कर लें. Okay. So this is actually your C4 level question, analysis का question है. ठीक है. अगर C3 लेवल का होता तो हम जस्ट एक को ही सॉल्व कर देते इसमें से. मैं कह देता कि आपको रीजनरेटर नहीं है, फाइंड आउट करना है एफिशिएंसी. बट नाउ दिस इज एन एनालिसिस क्वेश्चन. ठीक है. और इसका फैक्ट आप लिखेंगे कि क्यू इन पर तो कोई नहीं, सॉरी, बैक वर्क रेशो या वर्क रेशो दोनों चीज़ों पर नहीं पड़. ठीक है. बट एफिशिएंसी हाईली इंप्रूव हुई है. लेस क्यू इन हमें चाहिए. दिस मीन्स लेस फ्यूल बर्निंग होगी, फ्यूल सेविंग होगी. ओके. आई होप दिस इज क्लियर. दिस वाज योर चैप्टर 2. मेरी साइड से चैप्टर 2 ये था. And I will share the assignments and other stuff related to this chapter, and definitely कुछ practice problem भी आपके साथ share कर लूँगा. So I hope कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है. Now let me just save this क्योंकि मेरा laptop किसी भी time off हो सकता है. Okay, thank you very much. Allah Hafiz.